Hi everyone. Hello, how are you, my dear students? It is known to everyone that entire world is suffering from COVID-19, and by this reason, we can't provide my dear students a smooth education in our institute. So it is necessary for my dear students to follow the lockdown as well as stay at home and stay safe. You know, my dear student, that you have come in a new class, and that class is class 6. As you know, you have to read supplementary English reader book that is known as A Pact with the Sun in class 6 according to CBSE curriculum NCERT book. So today I will start, and I provide my all students which come in class 6 in A Pact with the Sun, a very important chapter, A Tale of Two Birds, and this is the first chapter for class 6, a supplementary book English reader. You know, A Tale of Two Birds, it gives a lots of information and messages to our life, how we come over from our jealous, and how can we purify our soul to make our life smooth and very clear. It is very necessary to everyone that we have a practical knowledge as well as theoretical knowledge. Without practical knowledge, you can't gain any kind of achievement in your life. So my dear students, please stay at home and stay safe, because COVID-19 is a very deadly virus, and it breaks out entire world these days. So I hope you are ready to listen my lecture, and you are also ready to take your pen, copy and your notebook that is known A Pact with the Sun supplementary English reader book. Okay, I hope you are ready. So I start first lesson of your book, that is known as A Tale of Two Birds. Look at here, chapter 1, and your book's name is A Pact with the Sun, and the first chapter of that book is A Tale of Birds. That's a very important chapter. Here we go. A mother bird and her two young ones lived in a forest. You know, एक मादा पक्षी और उसके दो नन्हे नवजात बच्चे एक जंगल में रहते थे. The mother was killed in a storm and the young birds were separated from each other. मादा पक्षी एक आंधी में मर जाती थी और उनके छोटे छोटे दो बच्चे एक दूसरे से अलग हो जाते थे. Each found a different home, और वे दोनों अपना अलग अलग आश्रय प्राप्त करते हैं. जैसा कि इसके चैप्टर के शुरुआत में ये बताया जा रहा है, जिससे ये साफ स्पष्ट हो रही है कि इसमें एक मादा पक्षी है
जिसके 2 छोटे बच्चे हैं, और एक आंधी में जब मादा पक्षी की मृत्यु हो जाती है तो उनके दोनों संतान आपस में बिछुड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और वो दोनों का एक अलग अलग वातावरण में पालन पोषण होता है, उनकी परवरिश होती है, और इस तरह से उन दोनों के व्यवहार में, उनके सिद्धांतों में एक अलग से और एक अप्रत्याशित हम बोल सकते हैं कि दोनों भाइयों को होते हुए जो एक सौदर है, उसके बावजूद उनकी व्यवहार में भिन्नता पाई जाती है। और ये आपकी जिंदगी की एक बहुत ही बहुमूल्य चैप्टर है, ए टेल ऑफ 2 बर्ड्स, अर्थात 2 पक्षियों की एक कहानी। इस पाठ में आपको यह जानने को मिलेगा कि यदि आप किसी अच्छे इंसान से दोस्ती करते हैं तो आपके ऊपर उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, और किस तरह से उस पक्षी के जो दूसरे भाई थे वो गलत इंसान के पास अपना आश्रय लिए और उनका गलत इम्पैक्ट उन पर पड़ा। तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे, आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, इस चैप्टर को मिस न करें, और इस वीडियो को ऐसा न कि पुश करके और आप इसे इग्नोर करें, क्योंकि ये आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही बेहद है, बहुत ही अहम हिस्सा है यह चैप्टर, और इसीलिए इसका नाम ए टेल ऑफ 2 बर्ड्स रखा गया है। ये 2 पक्षियों पर आधारित एक सजीव कहानी है जो आप अभी अपने आसपास समाज में इसे अपने सजीव उदाहरणों के साथ प्राप्त कर सकते हैं और ढूंढ सकते हैं। जैसा कि बताया जा रहा है इसकी शुरुआत में, There once lived a bird and her 2 newborn babies in a forest. एक पक्षी और उसके 2 नवजात बच्चे एक जंगल में रहते थे। एक पक्षी और उसके 2 नवजात बच्चे एक जंगल में रहते थे। They had a nest in a tall shady tree, and the mother bird took care of her little ones day and night. वे एक लंबे छायादार वृक्ष के ऊपर घोंसला बनाए हुए थे, और मादा पक्षी अपने छोटे बच्चों को दिन और रात एक करके उसकी देखभाल किया करता था। One day there was a big storm. एक दिन की बात है, एक बहुत बड़ी आंधी आई। There was the thunder, lightning and rain, and the wind blew down many trees. और ये जो आंधी है सिर्फ आंधी नहीं थी, पूरे गरज के साथ, बिजली के चमक के साथ इतनी तेज आंधी आई, और उस आंधी के साथ बारिश आई कि कई वृक्षों को वह आंधी अपने हवा के झोंकों से उखाड़ फेंकती। A big, heavy branch hit the nest and killed the bird. एक बड़ा भारी भरकम शाखा उस वृक्ष का जहां घोंसला लगाए हुए थे वो मादा पक्षी उसे हिट कर गया, अर्थात उसमें ठोकर मार देता है, और इससे उसमें बैठे मादा पक्षी की मृत्यु हो जाती है। Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. The other landed outside a research ashram a little distance away. सौभाग्यवश, या इसे हम कोइंसिडेंस ही समझेंगे, कि मादा पक्षी मर गए और उनके दोनों बच्चे सौभाग्यवश उस भारी भरकम वृक्ष के ठोकर से जो उसके घोंसले में लगी वो हट गए वहां से, और उड़ के अपने अपने अलग अलग स्थान पे जाके गिर गए आसपास के क्षेत्रों में, जिसमें से एक पक्षी एक ऋषि
महात्मा उनके आश्रम पे जाके गिर गया, जबकि दूसरा डाकुओं के गिरोह के पास जाके गिर गया। तो ये दोनों फुली डिफरेंटली एक अलग अलग स्थानों पे जाके गिर गए, और ये दोनों के बीच की दूरी बहुत थोड़ी थी। Days passed and the baby birds became big birds. दिन गुजरते गए और छोटे से वो पक्षी जो हैं अब बड़े पक्षी में रूपांतरित होते चले गए, अर्थात अब वह छोटे से बड़े हो गए थे। One day the king of the country came to the forest to hunt. एक दिन उस देश के राजा उस जंगल में शिकार करने के लिए आए। He saw a deer and rode after it. उन्होंने एक हिरन को देखा और उसके पीछा करते हुए और उसके शिकार के लिए आगे बढ़ने लगे। It ran deep into the forest followed by the king. और वह इसके पीछा करते करते, अर्थात कौन? राजा उस हिरन के पीछा करते करते घने जंगल में चले गए, बहुत ही जंगल की गहराई में चले गए राजा। और उसके बाद soon the king lost his way and didn't know where he was. जब राजा जंगल की गहराई में चले गए तो वहां वह उस गहराई में अपने आप को खो दी, और वहां वह पूरी तरह से हर एक रास्ते को उनके लिए ब्लॉक सा लग रहा था कि अब हम किधर जाएं, किम कर्तव्य विमुख, वह क्या करे क्या नहीं करे, इस तरह से वह खो गए कि वह अपने आप को वहां से बहुत ही असहज महसूस करते हुए निकलने की कोशिश कर रहे थे। He rode for a long time till he came to the other side of the forest. फिर उन्होंने घोड़े पे अपने आप को सवार किया और एक लंबी दूरी तय करते हुए बहुत देर तक वह चलते गए उस जंगल की गहराई से, घने जंगल से होकर के, ताकि जंगल के एक किनारे वह ढूंढ ले और वह अपने आप को महफूज, सुरक्षित अपने आप को कर सके। Very tired of now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. बहुत थक चुके थे, अब राजा बहुत थक चुके थे, और वह अपने घोड़ा से उतरे और बैठ गए एक वृक्ष के नीचे जो कि उसी गुफा के नजदीक खड़ा था। वह उस गुफा के नजदीक खड़ा था, वहां वह बैठ गया उस वृक्ष के नीचे। Suddenly he heard a voice cry out. अचानक उन्होंने एक चिलचिलाहट, जोर की आवाज, क्विक, हरी अप, जल्दी करो, जल्दीबाजी करो, there's someone under the tree. कोई वृक्ष के नीचे है, कोई इस वृक्ष के नीचे है जो बहुत धनी और कोई राजकुमार मालूम प्रतीत होता है। वह पक्षी अपने गैंग ऑफ रॉबर्स, डाकुओं के गिरोह के सदस्यों को इस तरह से बोल रहा था कि आप जल्दी करो, जल्दी आओ, कोई राजकुमार या तो कोई राजा है जिसके सिर पर, जिसके गर्दन में बहुत ढेर सारे आभूषण दिखलाई पड़ते थे। The king was amazed. राजा आश्चर्यचकित हुआ कि ऐसा क्या हो सकता है कि एक पक्षी और इस तरह से वार्तालाप करे, इस तरह से बातें कहे, क्योंकि पक्षी ने कहा था कि हे हमारे डाकुओं के गिरोह के सदस्य, आप जल्दी करो अन्यथा यह व्यक्ति तुरंत यहां से निकल जाएगा। He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. उन्होंने जब ऊपर देखा, राजा ने जब ऊपर देखा उस वृक्ष पर, तो उन्होंने पाया एक भूरा बड़ा पक्षी बैठे हुए था और वह यह बात को कह रहा था। He also heard faint noises
issuing from the cave, वह एक बेहोशी भरे कराहने की आवाज गुफा से आते हुए सुना। He quickly got on to his horse and rode away as fast as he could. वह राजा तेजी से उठे और अपने घोड़े पे सवार हुए और वहां से जितना जल्दी हो सके, जितनी तेजी में हो सके, वहां से वह भाग गए, निकल गए। The king was amazed to hear to a similar voice again. The king was amazed to hear a similar voice again. राजा एक बार फिर पुनः आश्चर्यचकित हो जाते हैं सुन करके उसी आवाज को, ठीक आवाज जैसा उन्होंने वृक्ष के नीचे सुना था, ठीक उसी तरह की आवाज को वह सुन करके फिर से बहुत आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन इस बार वह आवाज उनके आवाज से थोड़ा सा भिन्न था। He came to know the bird's true story. वह इन पक्षियों के सच्ची कहानी को जानने के लिए काफी उत्सुक थे और वह इस कहानी को जानने के लिए एक ऋषि के पास आते हैं। He met the rishi who explained the behavior of each bird. वह मिलते हैं उस ऋषि से जो उन्हें बताते हैं इन पक्षियों के, इन दोनों पक्षियों के, प्रत्येक पक्षियों के कहानियों के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन करते हुए। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. अब राजा वहां से अपने घोड़े पे चढ़ के और आते हैं एक सुनसान स्थान पे, जहां एक आश्रम के सिवा और कुछ भी नहीं दिखलाई पड़ता था उसके आसपास। It was the Rishi's आश्रम और यह ऋषि का आश्रम था। The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. राजा अपने घोड़े को बांध दिए एक वृक्ष में और उस वृक्ष के छाए में नीचे बैठ गए। Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram. Welcome to the ashram." अचानक उन्होंने एक विनम्र शिष्टाचारी भरी आवाज को सुना, जिस आवाज में ये कहा जा रहा था कि हे अतिथि, आपका इस आश्रम में हार्दिक स्वागत है। हे अतिथि, आपका इस आश्रम में हार्दिक स्वागत है। ये आवाज वही उस पक्षी का जो भाई था वह कह रहा था। Sir, please go inside and rest. हे महाशय, आप कृपया इस आश्रम के भीतर आए और आप आराम फरमाएं, क्योंकि आप मालूम प्रतीत होते हैं कि बहुत थके हुए हैं, बहुत दूर से आए हैं, इसलिए हे राजन, आपसे यह अनुरोध है कि कृपया आप इस आश्रम के अंदर आएं और आराम फरमाएं। The rishi will be back soon. ऋषि बहुत ही शीघ्र वापस आ जाएंगे। There's some cold water in the pot. आपको मेरे आश्रम के भीतर घड़ा में ठंडे पानी मिलेगा, जिसे आप पी के और अपने आप को तरोताजा महसूस करा सकते हैं। The king looked up and saw a big brown bird in the tree. राजा ने देखा एक बड़ा उसी पक्षी के रंग रूप के पक्षी का जो ठीक उसी के सेम साइज का था, और देख करके काफी आश्चर्यचकित हो गए कि वही पक्षी फिर दूसरी बात क्यों बोल रहा है। He was amazed. This one looks like the other bird outside the cave. He said to himself aloud. जोर से अपनी अंत आत्मा से राजन ने कहा कि संभवतः यह वही पक्षी है जो उस डाकुओं के गुफा के बगल में मिला था, और वही पक्षी अब मुझे इस आश्रम में आराम फरमाने को कह रहा है। ये विडंबना ही लग रही थी उसे।
You are right, sir, answered the bird. पक्षी ने उस राजन के अंतरात्मा की बातों को समझ गया और कहा, हे महाशय, आपका सूचना सर्वदा सत्य है। एकदम आप पूर्णतः सही बोल रहे हैं। मैं उसी पक्षी का सहोदर भाई। He is my brother, but he has made friends with robbers. वह मेरा भाई है और वह डाकुओं के साथ दोस्ती कर लिया है। वह मेरा भाई है, लेकिन उसने क्या किया? डाकुओं के साथ दोस्ती कर लिया है। He now talks as they do. और वह वैसे ही बातें करता है जैसे कि डाकू लोग करते हैं। He doesn't talk to me anymore. मेरे जैसा वह थोड़ा सा भी बात नहीं करता है। मेरे जैसा वो थोड़ा सा भी बात नहीं करता है। विनम्रता पूर्वक, शिष्टाचारी पूर्वक वो थोड़ा सा भी बात नहीं करता है, क्योंकि वह डाकुओं के साथ ही हमेशा रहा करता था। Just then the rishi entered the ashram. ठीक उसी वक्त ऋषि का आश्रम में प्रवेश होता है। Welcome sir, he said to the king. ऋषि ने कहा, हे महाशय, आपका स्वागत है हमारे आश्रम में। प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम। कृपया आप अंदर आए और इस आश्रम को आप अपना घर ही समझें। यू लुक टायर्ड। आप दिखने से बहुत थके हुए सा लगते हैं। रेस्ट फॉर अ व्हाइल। आप कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए आराम करें। Then you can share my food. तदुपरांत आप मेरे साथ भोजन करेंगे। हम अपने भोजन का आदान प्रदान करेंगे और दोनों मिलके भोजन एक साथ करेंगे। The king told the rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently, though they looked so alike. फिर राजा ने ऋषि को उन कहानियों को बताया जो उसके साथ दो बार घटी थी अभी। और राजा ने यह भी बताया कि ये दोनों एक ही तरह दिखते जरूर हैं, लेकिन दोनों का व्यवहार अलग अलग है। ऐसा क्यों? मुझे भोजन से ज्यादा आवश्यकता इसकी आन पड़ी है। हे ऋषिवर, मुझे ये बताने की कृपा करें कि ये दोनों एक जैसे दिखने वाले पक्षी वह इस तरह से अलग अलग व्यवहार क्यों करते हैं? The forest is full of surprises, he said. ऋषि ने कहा, हे राजन, ये पूरा वन, ये पूरा जंगल आश्चर्य से भरा हुआ है। इसलिए यदि एक जैसे दिखने वाले दोनों पक्षी अलग अलग व्यवहार किए हैं तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। The holy man smiled and said, वह सभ्य ऋषि मुस्कुराए और कहे, After all, one is known by the company one keeps. कुल मिलाके हे राजन देखा जाए तो एक व्यक्ति की पहचान उसकी संगति से होती है। इसलिए हे राजन, ये दोनों एक जैसे दिखने वाले पक्षी एक ही उदर से जन्म जरूर लिए हैं, लेकिन इनकी जो संगति है वो अलग अलग समुदाय, अलग अलग परिवेश रखने वाले व्यक्तियों के साथ हुई है। और यही वजह है कि ये दोनों एक जैसे दिखने वाले पक्षी अलग अलग व्यवहार करते हैं। इसलिए मेरे प्यारे छात्रों छात्राओं, मैंने इस पाठ के प्रारंभ में ही आपसे कहा था कि यह आजकल के जो सजीव उदाहरण हैं, जो परिवेश है, परिप्रेक्ष्य है, उस पर आधारित अति महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तक में दी गई एक चैप्टर है। इसलिए इसको अक्षरशः अनुकरण करने की कृपा करेंगे।
जैसा कि आप लोगों ने जाना भी है, बताया भी जाएगा आप लोगों को, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। साहित्य समाज की दर्पण होती है। साहित्य को समाज की दर्पण कही गई है क्योंकि साहित्य जहां है वहां संस्कृति, सभ्यता की भरपूर मात्रा में और भरपूर परिवेश में देखी जाती है। इसलिए हमेशा याद रखें कि आप जब भी संगति करें एक अच्छे इंसान के साथ करें जिससे आपके ऊपर उसका अच्छा इंपैक्ट पड़े, प्रभाव पड़े। That one has always heard the talk of robbers। अब ऋषि कहानी कहते हैं उन दोनों पक्षियों के बारे में और वह यह कह रहे हैं कि हे राजन, वह पक्षी जो उस डाकुओं के गुफा के बगल में स्थित एक बड़ा सा वृक्ष के ऊपर बैठे हुए था, वह इसीलिए इस तरह से बोला क्योंकि वह हमेशा उसके परिवेश से ही अपने आप को प्रभावित किए हुए था। He imitates them and talks about robbing people। वह नकल किया करता था उनकी बातों का, किनकी बातों का? डाकुओं की बातों का, और हमेशा वह बात कर रहा था। कौन? डाकू। चोरी करने का, कहीं सेंधमारी करने का, और इसीलिए वह हमेशा उसी भाषा को दोहरा रहा था। This one has repeated what he has always heard। वह हमेशा वही दोहराता था जो वह हमेशा सुना करता था उनके मुखार बिंदुओं से। He welcomes people to the ashram। और ये पक्षी जो है हमेशा आगंतुकों को आश्रम में आने के लिए स्वागत भरी बातों से, विनम्रता भरी बातों से, स्वागत भरी बातों से एवं विनम्रता भरी बातों से कहता है, क्योंकि हम हमेशा एक ऋषि होने के नाते सभ्यता, संस्कृति को अपनाते हुए शिष्टाचारी पूर्वक, नम्रता पूर्वक आगंतुकों को जिस तरह से बुलाते हैं उसका अनुकरण यह करता है। Now come inside and rest। अब भीतर आए इस आश्रम में और आराम करें। I will tell you more about this place and these birds। मैं आपको बहुत अधिक बताऊंगा इस स्थान के बारे में और साथ ही साथ इन पक्षियों के बारे में। तो मेरे प्यारे छात्रों एवं छात्राओं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि यह एक कहानी पूरी तरह से हमारे अभी वर्तमान के सामाजिक परिवेश पर आधारित है। इसलिए हम आपसे यह अनुरोध करते हैं, कल्पना करते हैं, आशा करते हैं कि निश्चित रूप से आप इस पाठ से बहुत कुछ सीखे होंगे और इसको सीख करके आप अपने आने वाले जीवन में इस तरह का अनुकरण करके और अपने आप को हमेशा शुद्धिकरण तन मन से अपने आप को एक जिम्मेवार नागरिक बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद।